یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ اسرار الحق مجاز کی مشہور نظم نظر علی گڑھ۔ پوری نظم کچھ اس طرح سے ہے: سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ ہر آن یہاں صحبائے کہن ایک ساغر نو میں ڈھلتی ہے، کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے، پھولوں سے جوانی ابلتی ہے۔ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی ہیں اور آزر بھی، تہذیب کے اس مے خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی۔ یہاں حسن کی برق چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے۔ ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں، ہے سارے جہاں کا سوز یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی، یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بری ارمانوں کی۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں، گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں۔ اس فرش سے ہم نے اڑ اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں، ناہید سے کی ہے سرگوشی، پروین سے رشتے جوڑے ہیں۔ اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں آنکھ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں۔ اس بزم میں نیزیں پھینکے ہیں، اس بزم میں خنجر چومے ہیں، اس بزم میں گر کر تڑپے ہیں، اس بزم میں پی کر جھومے ہیں۔ آ کے ہزاروں بار یہاں خود آگ بھی ہم نے لگائی ہے، پھر سارے جہاں نے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے۔ یہاں ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے قبائیں نوچی ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں۔ ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں، ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں، تدبیر کے پائے سنگی پر جھک جاتی ہے تقدیر یہاں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ اس گل کدائے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، پھر ابر گرجنے والے ہیں، پھر برق کڑکنے والی ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، ہر سرو و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر کڑکے گا۔ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ 1936 میں مجاز نے اپنی یہ مشہور نظم نظر علی گڑھ لکھی، اور اس نظم کے کچھ حصے ہم بطور ایم یو ترانے کے گاتے ہیں۔ اگر ملکوں کے قومی ترانوں کی بات چھوڑ دی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گائے جانے والے نغموں میں سے ایک ہے، جسے دنیا بھر میں پھیلے الیگز بہت ہی جوش و خروش سے گاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور نہ صرف گانے والے بلکہ سننے والے بھی بہت متاثر اور محظوظ ہوتے ہیں۔ اس ترانے میں اردو کے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو ہم آج کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ صرف یہی نہیں، اس نظم کی، اس ترانے کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب مجاز نے پہلی بار اس کو لکھ کر پیش کرنا شروع کیا، یا انہوں نے یونین ہال میں جب اس کو پڑھا، تو اس وقت کے پرو وائس چانسلر احمد حلیم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب یہ لائنیں آئیں، یہاں ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں، تو وہ
इससे खफा होकर वहाँ से चले गए और उस वक्त मजाज ने भी इस नज़्म को अधूरा छोड़ दिया और वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ वक्त के बाद यूनियन हॉल के लॉन में अपनी इस अधूरी नज़्म को उन्होंने पूरा किया। इसके बाद 1954-55 में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के कहने पर बीएड के स्टूडेंट खान इश्तियाक साहब ने इस नज़्म के कुछ हिस्सों को धुन देने का फ़ैसला किया और कुछ हिस्सों की धुन बनाई और अपनी यूनिवर्सिटी को ये लाजवाल तोहफ़ा दिया। सितंबर 1954 में इश्तियाक साहब ने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट अहमद सईद साहब से इस तराने को पेश करने की गुजारिश की, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये एक प्रोग्रेसिव राइटर मजाज की लिखी हुई नज़्म है। लेकिन वाइस चांसलर साहब की इजाज़त के बाद इसको पढ़ने की इजाज़त मिल गई। 17 अक्टूबर 1954 इश्तियाक साहब अपने ग्रुप के लोगों के साथ साले नैयर, ग़ुलाम हैदर, एजाज़ और फसी साहब के साथ जब स्ट्रेची हॉल के स्टेज पर पहुँचे और एसएस हॉल के म्यूज़िक क्लब के सेक्रेटरी जनाब इज़्ज़त यार ख़ान ने हारमोनियम पर इसकी धुन छेड़ी तो पूरा स्ट्रेची हॉल ये मेरा चमन के नारों से गूंज उठा। तारीख़ लिखी गई और इश्तियाक साहब ने और मजाज ने मुश्तरका तौर पर यूनिवर्सिटी को ये एक कभी ना भुलाए जाने वाला तोहफ़ा दिया। इसके एक साल के बाद मजाज का इंतकाल हो गया, लेकिन मजाज के नाम की मोहर हर अली के दिल पर लगी हुई है। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। यहाँ मजाज ने अपनी इस दरसगाह को एक चमन यानी एक बाग से तशबीह दी है और ख़ुद को बतौर तालिब इल्म बुलबुल माना है, जो कि एक बहुत खूबसूरत आवाज़ वाली खूबसूरत चिड़िया होती है। इस मिसरे का सार ये कि यूनिवर्सिटी एक बाग है, ये दरसगाह एक चमन है। इस बाग में दुनिया भर से आए तालिब इल्म चहकती हुई बुलबुलें हैं जो अपने नग़मे गाते फिरते हैं। सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, वाबस्ते गेसुए सुंबुल हूँ। सरशार यानी किसी चीज़ में बहुत नहा जाना, तो नरगिस यानी डेफोडिल्स बहुत खूबसूरत खुशबू वाले फूल होते हैं। सुंबुल भी एक खुशबूदार घास होती है। यानी ये कि मैं इस जगह के फ्लोरल सेंट, यहाँ के पेड़ पौधों की खुशबू और यहाँ के माहौल की खुशबू में नहाया हुआ हूँ, सराबोर हूँ। जो ताक़े हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ताक़ यानी पुरानी इमारतों में रोशनी के लिए एक जगह मखसूस होती थी जहाँ का ऊपर दिए या शमा जलाई जाती थी, और हरम यानी मुक़द्दस खाना काबा। जूए हयात यानी स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर ऑफ लाइफ, यानी ये कि जो इल्म, ईमान और नूर की रोशनी हरम से निकलती है, वैसी ही रोशनी हमारी इस मादरे दरगाह से भी निकलती है। और इस दश्त यानी इस पूरी यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर चारों कोनों पर ज़िंदगी यानी ऑप्टिमिज़म की एक नदी बहती है। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शब शिराज यहाँ। यानी यहाँ की शामों की रौनक मिस्र के बाज़ारों की चहल पहल की तरह है और हर शब शिराज की रातों की तरह है। पुराने ज़माने में मिस्र के बाज़ारों की रौनक पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थी, और शिराज जो कि ईरान का एक शहर है, शिराज की रातों की अदबी महफ़िलें भी बहुत मशहूर थीं। उसी तरह यहाँ शामें भी रौनक वाली होती हैं, और रातों में जब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो ये भी इल्मी नशिस्तें होती हैं। है सारे जहाँ का सोज़ यहाँ और सारे जहाँ का साज़ यहाँ। सोज़ के माने हैं मरसिया, फ्यूनरल सॉन्ग, मातम। साज़ के माने वैसे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हैं, लेकिन यहाँ मजाज ने आपसी यकजहती या
हारमोनी के लिए इस्तेमाल किया है। यानी यहाँ इस इदारे में तमाम इंसानों के दर्द को महसूस किया जाता है और साथ ही यहाँ का साज पूरी दुनिया में बजता है और यहाँ से आपसी भाईचारे का पैगाम भी जाता है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफ़ा परवानों की, यानी इस ज़मीन पर इस दरसगाह में पढ़ने वाले तलबा में एक जुनून है, एक दीवानगी है, अपने इदारे से इश्क है। और जैसे पतंगे परवाने शमा पर नौछावर होते हैं, वैसे ही यहाँ के तालिब इल्म भी अपनी इस मादर दरसगाह पर जान निसार करते हैं, इसके वफ़ादार हैं और ताउम्र इसके क़सीदे पढ़ते हैं। ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की शहर तरब यानी म्यूज़िकल सिटी। इस शहर में एक लय है, यानी इस शहर में मौसीकी सा रोमांटिसिज्म है। यहाँ का माहौल बहुत रोमान परवर और खुशियाँ देने वाला है। खुल्द बरी यानी ऊंची जन्नत। ये दरसगाह हमारी आरजुओं और तमन्नाओं की जन्नत है, जहाँ हम अपने अरमानों को परवान चढ़ाते हैं और तालीम और तरबियत का सबक लेकर दुनिया में जाते हैं और कामयाब होते हैं। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। यहाँ उफ्ताद से मुराद है इब्तिदा, यानी तालीम हासिल करके ज़िंदगी में कामयाबी की उड़ान का हुनर हमें हमारी इस दरसगाह से मिलता है। यानी ये इस दरसगाह ने हमें मुश्किलात का सामना करते हुए उड़ना सिखाया है। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, यानी हमने यहाँ अपने मुल्क, अपने इदारे से वफ़ादारी के अहद को जुनून की हद तक निभाया है और इसे नग़मों में ढाला है। इस बज़्म में तेग़ें खींची हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। यानी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ के तालिब इल्म तलवारें मियान से खींच सकते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर तहरीक आज़ादी के दौर का ज़िक्र है, जिसमें AMU के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर इसी बज़्म यानी महफ़िल यानी दरसगाह में हमने यारों की महफ़िलें भी सजाई हैं और गैरों का इस्तक़बाल या वेलकम भी आँख बिछा कर किया है और टूटे हुए दिल तक जोड़े हैं। यानी अगर किसी से नाराज़गी या रंजिश हुई भी है तो भी हमने मोहब्बत से मामलात सुलझाए हैं। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। यानी ये ज़मीन इतनी मुक़द्दस है कि आसमान भी अपनी बुलंदी से, अपनी ऊंचाई से झुककर इस ज़मीन के ज़र्रात को चूमता है और ख़ुद हमने आँखों से बातिल यानी झूठ और फ़रेब की शिकस्त यहाँ पर देखी है और हक़ सच्चाई की जीत देखी है। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। यहाँ से इल्म का जो बादल उठेगा वो तमाम दुनिया को सैराब करेगा, उसकी तश्नगी, उसकी प्यास को बुझाएगा। हर जुए रवां पर बरसेगा, हर कोहे गिरां पर बरसेगा। जुए रवां यानी बहते पानी पर, यानी नदियों पर, कोहे गिरां यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी बरसेगा। यहाँ के तालिब इल्म पूरी दुनिया में अपने इल्म के साथ छा जाएंगे। हर सर्व समन यानी हर पेड़, हर फूल पर बरसेगा। खुद अपने चमन यानी अपनी ज़मीन, अपने मुल्क पर बरसेगा और गैरों के मुल्कों पर भी बरसेगा। ये इल्म का बादल हमेशा बरसा है, हमेशा बरसता रहेगा। हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर कड़केगा। यानी इल्म का ये बादल हर उस शहर पर बरसेगा जो इल्म की अहमियत से नावाकिफ़ है या जो जहालत के दौर में जी रहे हैं। ये इल्म का बादल दुनिया की रंगीनियों, ऐशो इशरत में डूबे हुए ऊंचे ऊंचे महलों पर भी भारी गरज से बरस कर उन्हें इल्म की अहमियत से वाकिफ़ कराएगा।